پنجاب میں انٹر بورڈ کے حیران کن نتائج کا جس نے سننے والوں کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور ملتان میں انٹر کے طلبہ کی کامیابی کی شرح 98% سے بھی زیادہ سامنے آئی ہے۔ ملتان میں 48 اور فیصل آباد میں 24 طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے 100% نمبرز حاصل کیے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، لاہور سے ہمارے ساتھ اکمل سومرو موجود ہیں۔ اکمل سومرو بتائے گا کیا شرح رہی ہے یہاں پر پاس ہونے والے طلبہ کی؟ لاہور بورڈ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں کامیابی کا تناسب 98.71% ہے، اور یہ کامیابی کا تناسب اس لیے اس قدر زیادہ ہے کہ حکومت پنجاب کی پروموشن پالیسی کے تحت تمام طالب علموں کو پاس کر دیا گیا ہے۔ جو طلبہ فیل ہو رہے تھے انہیں بھی گریس نمبر دے کر پاس کیا گیا ہے، اس لیے یہ کامیابی کا تناسب زیادہ ہے۔ اور جو 1% سے زائد جو ڈفرنس آ رہا ہے، یہ وہ طلبہ ہیں جو ان امتحانات میں شریک نہیں ہوئے، اور ان کے لیے اب پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں اسپیشل امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا، اور یہی طلبہ فیل قرار دیے گئے ہیں۔ ان کے لیے جو اسپیشل امتحان ہوگا اس کے لیے تاریخ جو ہے وہ کاغذات جمع کرانے کی وہ 27 اکتوبر مقرر کی گئی ہے، جبکہ اگر لاہور کی ہم بات کریں تو اس میں مجموعی طور پر 1,85,000 امیدوار شریک ہوئے تھے، جس میں سے 31,353 طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے A+ گریڈ حاصل کیا ہے، جبکہ A گریڈ میں 23,737 طلبہ پاس ہوئے ہیں۔ جو گریس مارکس کے تحت جن طلبہ کو پاس کیا گیا ہے ان کی تعداد 24,347 ہے، اور انہیں گریڈنگ سسٹم کے تحت E گریڈ دیا گیا ہے۔ جی اکمل سومرو یہ بتائے گا جو اسپیشل امتحانات کنڈکٹ اب کروائے جائیں گے جو غیر حاضر طلبہ تھے ان کے لیے، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، اس کے لیے طلبہ جو غیر حاضر تھے، جو اس امتحان میں شریک نہیں ہوئے، ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ امتحان میں شرکت کرنے کے لیے اپنے داخلہ فارم جو ہے وہ 27 اکتوبر تک جمع کرا دیں، اور اس ضمن میں یہ ہے کہ ان طلبہ کے صرف جو اختیاری مضامین ہیں انہی کا امتحان لیا جائے گا، اور اس کے بعد یہی پالیسی ان پر بھی لاگو ہوگی کہ اگر وہ فیل ہو رہے ہوں گے تو ان کو پاس کیا جائے گا، اور مجموعی طور پر جو ان کا نتیجہ ہوگا اس میں 5% اضافی نمبرز بھی دیے جائیں گے۔ تو کیا اس سلسلے میں ضمنی امتحانات یا سپلیمنٹری امتحانات کا بھی ذکر ہوگا؟ نہیں جی، بالکل ایسا نہیں ہے، یہ اسپیشل امتحانات ہیں، کیونکہ کووڈ کی پالیسی کے تحت جو پروموشن پالیسی کی دستاویز حکومت نے جاری کی ہے اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ غیر حاضر ہونے والے طلبہ کے لیے اسپیشل امتحان کنڈکٹ ہوگا، یہ کوئی سپلیمنٹری امتحان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ڈی گریڈ میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہوگا اس کے بعد؟ جی، اس میں سب سے عام بات ہے E گریڈ کے طلبہ کی، جن کے صرف 33% نمبر ہیں، اور ان کی تعداد تو 24,347 ہے، جبکہ ڈی گریڈ میں پاس ہونے والے جو طلبہ ہیں ان کی تعداد 39,219 ہے۔ مجموعی طور پر لاہور کے تعلیمی بورڈ میں 60,000 سے زائد ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے ڈی گریڈ اور E گریڈ میں امتحان پاس کیا۔ ان کو یونیورسٹیوں میں داخلے نہیں ملنے کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں جو میرٹ ہے وہ 80% سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت زیادہ سختی ہے، وہاں پر بھی ان طلبہ کو داخلے نہیں ملیں گے۔ ہم پہلے بھی یہ خبر چلا چکے ہیں کہ ان طلبہ کا مستقبل جو ہے وہ مسلسل خطرے میں رہے گا، کیونکہ ان کے پاس جو صنعتیں ہیں انٹرمیڈیٹ کی، اس کی مارکیٹ میں کوئی وقت نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے، اکمل سومرو ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ملتان سے الشبہ آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ الشبہ، 98% سے زیادہ کامیابی کا تناسب رہا ہے، 48 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے 100% مارکس لیے ہیں۔ اس دفعہ تو خاصے حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں۔ جی بالکل، اس دفعہ کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 48 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں ملتان ڈویژن سے جنہوں نے 1100 نمبر لے لیے ہیں، پورے کے پورے مارکس لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7,000 سے زائد طلبہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 1000 سے اوپر مارکس لیے ہیں۔ تو جو کامیابی کا تناسب ہے وہ 98% رہا ہے، جس سے طلبہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ مگر اس میں ایک جو پرابلم ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جن بچوں کو C, D اور E گریڈ دیا گیا ہے وہ بھی کافی زیادہ شمار ہے۔ اگر پری انجینئرنگ کے بچوں کی بات کی جائے جن کو D گریڈ ملا ہے تو وہ ایسے طلبہ ہیں 1358 کو D گریڈ دیا گیا۔ اسی طرح E گریڈ والے جو ہیں 1516 طلبہ ہیں، اور اسی طرح اگر پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو ان کو جو D گریڈ ملا ہے وہ 1266 اسٹوڈنٹس ہیں، اور E گریڈ والے 1003 اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور اسی طرح اگر آرٹس کے جنرل سائنس گروپ ہے ان کے طلبہ کی بات کی جائے تو
सी ग्रेड वाले उनमें 1500 से जायद तलबा हैं, इसी तरह डी ग्रेड वाले 2500 से जायद तलबा हैं, इसी तरह ई ग्रेड वाले 1800 से जायद तलबा हैं। तो जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं उनको तो एडमिशन मिल जाएगा, और जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए उनके लिए एक सवालिया निशान है कि वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना इन ग्रेड्स के साथ बिल्कुल नामुमकिन है। और जो बच्चे 98% जैसे रिजल्ट रहा है मुल्तान डिवीजन का, जो 1 कुछ फीसद रिजल्ट है जो नेगेटिव में आया है, वो भी इसमें आया है कि एब्सेंट है वो बच्चे, और उनका जो इम्तहानात है स्पेशल कंडक्ट करवाए जाएंगे। और इम्तहानात के लिए मुल्तान बोर्ड की जानिब से बाकायदा डेट भी अनाउंस कर दी गई है कि 27 अक्टूबर तक जो है बच्चे अपने फॉर्म फिल करेंगे, और इसी तरह उनके जो इम्तहान है ठीक है। अलिशबा, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर अंजुम ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस दफ़ा 98% जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं, और अगर मुल्तान डिवीजन की बात की जाए वहाँ पर 48 तलबा के 100% मार्क्स हैं। तो सर डेफिनेटली जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी प्रेफर करेंगे कि जिनके अच्छे मार्क्स हैं उन्हें एडमिशन दिया जाए। तो क्या सूरत हाल आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। रिजल्ट तो ऐसा ही आया है जो देख के हमारे जैसे लोग तो थोड़े से सरप्राइज भी हैं, क्योंकि 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स ले लेना भी बहुत बड़ी बात है, और बड़ी क्या आई डोंट नो, इसे बिलीव करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन बहरहाल इस तरह का रिजल्ट तो अब आ गया है, और इसमें ऑफ कोर्स अब मेरिट बहुत हाई जाएगा, चाहे वो कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है। ऑफ कोर्स मेरिट तो पहले से बहुत ऊपर चला जाएगा, और बहुत सारे बच्चे जो टॉप पे हैं जाहिर है उन्हीं के लिए सारी फैसिलिटीज जो हैं अब होंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें इतनी परेशानी की भी बात इस एंगल से नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शायद अब जिस तरह से पहले एक भेड़ चाल होती थी कि या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और इस फिक्स्ड आपके जो है कुछ डिसिप्लिन होते थे उसमें जाना है, अब डिसिप्लिन की आपके पास एक लंबी रेंज है, और स्पेशली आईटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपके पास अब सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप जा सकते हो, और उसकी अब मार्केट भी देखा जाए तो उसी की है। तो डेफिनेटली टॉप पे तो वही लोग जाएंगे जो हमेशा से जैसे मेडिकल का या इंजीनियरिंग का रहता है आपके पास, उसके बाद फिर आईसीएस आ जाता है। तो इसमें हमारे पास और डिसिप्लिन में भी बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, और अगर वो बहुत लाइक हैं, इतने अच्छे मार्क्स ले लिए, तो डेफिनेटली फिर उसमें भी आपके पास जो है ऑप्शंस होंगी कि टॉप जो क्रीम आपके पास है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लाइक बच्चे हैं, और वो जानते हैं किस तरह से पढ़ना है, कैसे मार्क्स लेने हैं और कैसे आगे जाना है, तो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कोई परेशानी की बात इस एंगल से तो है कि स्पेसिफिक डिसिप्लिन में उस तरह लोग नहीं जा सकेंगे, लेकिन ऑप्शंस इतनी है कि इतना बहुत बड़ा इशू नहीं बनने वाला। लोगों को अब थोड़ा सा एक वो लाइन से हट के सोचना पड़ेगा कि दूसरे सब्जेक्ट जिसमें आप आगे आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं और आप अच्छा फ्यूचर अपना बना सकते हो, तो उस तरह। डॉक्टर साहबा, मैं कता कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि जिनके अच्छे नंबर्स हैं, जिनके अच्छे ग्रेड्स हैं, उन्हें तो दाखिला मिल जाएगा और यकीनी तौर पर मेरिट भी हाई जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो जिनका डी ग्रेड है या जो ई ग्रेड में है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? जॉब मार्केट में भी ये डेफिनेटली उन्हें फिर मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह की चीज तो होगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं जो कि पढ़ाई में शायद इतने अच्छे नहीं होते और वो ग्रेड्स अच्छे नहीं ले सकते। मैं समझती हूँ कि आज का दौर ऐसा है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो आप कोई स्किल जब ले लेते हो ना, तो स्किल भी आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। तो हमारी ऑलरेडी गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा अगर आप देखा जाए तो इसके पर फोकस है कि हम बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके आए, कि ना सिर्फ वो अपने इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो बल्कि साथ ना साथ कोई स्किल भी सीखें। और बहुत जैसे डिफरेंट इदारों ने इस तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं, जिससे वो अपने आप की कोई एक स्पेसिफिक स्किल जो उनके अंदर है उसको एनहांस करते हैं और अपने लिए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी अपने आप को लेके जा सकते हैं। तो ऐसी ऑप्शंस भी हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि कोई बच्चा अगर अच्छे मार्क्स नहीं ले रहा, उसमें कोई ना कोई ऐसी खासियत जरूर होती है और खुदा ने उसको ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक जरूर दी होती है कि वो किसी न किसी एक अच्छी
किसी फील्ड में जाके अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है। तो मैं इतनी ज़्यादा जैसे कहते हैं होपलेस नहीं हूँ। मुझे यही लगता है कि डेफिनेटली अगर हमारे बच्चे सिर्फ डिग्रीज लेने के बजाय अपने इस तरह के कोर्सेज की तरफ जाएं जिसमें उनकी स्किल डेवलप होगी, तो उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट ही होगा। अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना या आगे किसी भी फील्ड में आगे जाना, उनके पास इतनी ज्यादा रुकावटें नहीं होंगी। सिर्फ मेंटली हमें जिसको कहते हैं माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर तो मखसूस नशिस्तें होती हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं यकीनी तौर पर उन्हें वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अब बात की जाए डी और ई ग्रेड वालों की, तो आपको नहीं लगता कि इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद अगर इन्हें दाखिला नहीं मिलता तो आगे तालीम जारी रखना वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं इसी का जवाब दे रही थी कि लाजमी नहीं है कि आप देखें बहुत सारी ऐसे इदारे हैं जो आपको ट्रेनिंग्स देते हैं कि आप अपनी किसी तरह की स्किल में भी, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में आगे जाना चाहते हो, आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हो, आप कंपोजिंग की तरफ चले जाते हो, तो आपकी आप जैसे मास कम्युनिकेशन की अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसमें कैमरा पर्सन जो है उसको बहुत ज्यादा कोई पढ़ना भी नहीं पड़ता, और बहुत से छोटे ऐसे इदारे गवर्नमेंट के तो नहीं लेकिन इस तरह से प्राइवेट इदारे भी बन गए हुए हैं जो कि बिल्कुल थोड़े टाइम में आपको ज्यादा कुछ कोई ना कोई स्किल दे देते हैं कि आप उसको लेके अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हो। तो इसलिए इसी तरह से जैसे देखिए एडिटिंग, अगर आप इसकी बात करें, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या इवन अगर हम इंटरनेशनली भी देखें तो लोग अब इसके ऊपर चल रहे हैं कि आप मुख्तलिफ तरह के जो ऐसे डिजिटल या ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें अगर अपने आप को डेवलप कर लेते हो, इन्हांस कर लेते हो, आप उसकी लर्निंग की तरफ चले जाते हो, तो आप ऑनलाइन घर बैठ के ही बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। तो फ्यूचर जो है वो इतना मैं नहीं समझती कि कोई डार्क हमें नजर आ रहा है न्यू जनरेशन का। अब आप सोशल मीडिया की एग्जांपल ले लें, इस कदर आपको जो है, अब हमारी अगर यंग जनरेशन को देखें तो वो इतनी स्किलफुल है, इतनी उनके अंदर वो इंटेलिजेंट है कि वो एक वक्त में क्या क्या काम कर रही होती है। तो आपके पास अर्निंग के और बहुत से रास्ते हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रह के ही आप सीख सकते हैं या डिग्री हासिल करके ही कुछ कर सकते हैं। इसके लिए डिप्लोमा कोर्सेज भी अब हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। अगर बच्चे अपने आप को समझ लें कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है और कौन सी क्वालिटी को इन्हांस करके वो अपने लिए अच्छा फ्यूचर पा सकते हैं, तो ये उनके लिए मेरे ख्याल में बेस्ट टाइम है कि उनको शायद अल्लाह की तरफ से भी इशारा मिल गया कि आपके इतने मार्क्स नहीं है लेकिन आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, आप अपनी कोई स्किल डेवलपमेंट करें और उस तरफ चले जाएं। और हमारी देखें, अगर हम देखें हमारे यहाँ भी वो शख्स जो कि इवन जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियंस हैं, मतलब जितने भी आपके ठीक, यानी कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल गए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजुम ज़िया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर तालीम। इसके अलावा अलिशबा हमें अपडेट करी थी मुल्तान से, इकमल सुमरू लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।